Jai Hind to all. My name is Ashish Kumar and I am Assistant Professor in Department of Computer Science and Engineering, and the college is Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad. In the series of operating system subject, today's topic is disk scheduling algorithm. So disk scheduling algorithm says that the operating system is responsible for using hardware efficiently for the disk drives. This means having a fast access time and disk bandwidth. So mainly we have a access time divided into the two major components called as a seek time, and the second one is the rotational latency. Seek time says that it is the time for the disk or to move the head to the cylinder containing the desired sector. Means we have a disk divided into the platters. So these are the platters, right? And these platters are attached with the arm. Okay, this is the arm. And these platters further divided into the sectors. On this sector, we have a different tracks. Right? So on this tracks, we have a desired data. Okay? And this arm attached with the read-write header or head. Okay? So in this platter, जो ये आपका रीड राइट हेडर है, ये आपका मूव करता है बैक एंड फोर्थ मोशन में. ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन में ये मूव करता है और जो भी डेटा है डिजायर सेक्टर के अंदर ट्रैक्स में उन डेटा को रीड करता है. सो बेसिकली डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के जरिए हम क्या होता है, हमें टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस को कवर अप करते हैं. राइट? So we have a different disk scheduling algorithm like FCFS, first come first serve, then further SSTF. It stands for shorter seek time first. Then we have a scan, then look, and the advanced version of the scan, C scan, called as a circular scan, and advanced version of the look called as a C look. So in the disk scheduling algorithm, we have these kinds of algorithms, right? So we will discuss one by one through the example. Let's start. So disk scheduling algorithm says that several algorithms exist to the schedule the servicing of the disk IO request. We illustrate them with the request queue. So we have a request queue, and in this particular request queue we have a different like tracks 0 to the 199. So total number of tracks like 200. Okay, and these are the different IO request queue जिसमें हमें जाना है 98 पोजीशन पर 193, यही हमें कवर अप करने हैं, क्योंकि मेनली हमें क्या है, डिस्क में हमारा जो रीड हेडर होता है वो हमें उस पर्टिकुलर ट्रैक्स पे ले जाता है और वहां से डेटा को रीड आउट करता है. सो करंट इनिशियली वी हैव अ हेडर पॉइंट, दैट इज रीड राइट हेडर पॉइंट. जो कर रहा है वो किस ट्रैक्स पर है, दैट इज 53. सो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. So we have a queue, request queue. ये हमारी request queue है. 98, 183, 37, 120, 14, 124, 61 and 67. And the initial head start point is the 53, right? So FCF is आपकी, it says that first come first serve. So दैट मीन्स जैसे जैसे जो रिक्वेस्ट आ रही है हम उन्हें उनको सर्व करते चला है. और इनिशियली हमारी जो करंटली हेड पोजीशन है रीड राइट हेड की, वो कितनी यहां पर है, 53. ओके, सो 53
के बाद अब रिक्वेस्ट क्यू को हम देखेंगे, क्योंकि मेनली हमें जो फोकस करना है वो रिक्वेस्ट क्यू पे ही करना है। ओके, सो रिक्वेस्ट क्यू में जो हमारा पहला ट्रैक जिसको हमें कवर अप करना है वो है 98। ओके, सो 53 से हम कहां जाएंगे, देखिए जैसे ये डायरेक्शन दे रखी है, ये 98 की है ना, तो इसको हम कवर अप कर लेंगे। देन फर्दर कौन सी आएगी 183, देन 98 से हम फर्दर कहां गए 183, सो दिस इज द 183। देन 183 से 37, सो देन हम कहां हुए, मूव हुए बैक हुए। सो बैक एंड फोर्थ पोजीशन में आपका रीड राइट हेडर मूव करता है, तो यहां से हम कहां पर आए 37, सो दिस पोजीशन इज दी 37। देन 37 के बाद 122, हम यहाँ 122 पर आ गए, ये आपकी पोजीशन एज अ 122। 122 के बाद देन फर्दर 14, हमने 14 को कवर अप किया, 14 जो भी ट्रैक है। देन फर्दर हम 14 के बाद हमारा जो ट्रैक है वो हम उसको कवर अप करेंगे 14 के बाद 124, सो हियर इज दी 124। 124 के बाद 65, सो ये हमारा 65। आफ्टर दैट वी हैव टू कवर द लास्ट ट्रैक दैट इज 67, so here is the 67, so this is the now we have to conclude that total head movements by the read write header. Okay, so we have to calculate, like firstly the initial position of the read write head, that is 53 से हम 98 गए, 98 से हम 183 गए। so there are two approaches, कौन कौन सी, या तो आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए ऐसे कि 53 से 98 गए, तो आप क्या करेंगे 98 माइनस 53, तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। देन आप फिर 98 से 183 गए, फिर आप 183 से माइनस करेंगे, जैसे लाइक 50 आपका पहला का है 98, ठीक है, तो वेट अ मिनट, सो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे करेंगे 98 माइनस 53 प्लस 183 माइनस 98 प्लस, क्योंकि हमें कैलकुलेट क्या करना होता है, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस या टोटल नंबर ऑफ रीड राइट हेड मूवमेंट कितना हुआ, उसका टोटल डिस्टेंस कवर बाय द रीड राइट हेडर। तो एक तो अप्रोच यही है कि आप एक एक डायरेक्शन को लेके चले, जैसे शॉर्ट डायरेक्शन ये 53 से 98 गए, फिर 98 से हम 183 आए, 183 से हम 37 आए, तो 183 माइनस 37, ठीक है। या तो ये एक अप्रोच ये है, या आप एक डायरेक्शन को पूरे ले, देखिए हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर हम इसको देखें 53 से हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं टुवर्ड्स दी लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज 183, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप ऐसे भी दूसरा अप्रोच ये फॉलो कर सकते हैं, आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए 183 माइनस 53 प्लस, अब देखिए यहां से हम डायरेक्ट एक डायरेक्शन है ये वाली, तो 183 माइनस 37, 183 माइनस 37 प्लस ये पोजीशन हो सी 122, तो 122 माइनस 37, देन फर्दर 122 माइनस 14, आगे वही फर्दर कैलकुलेशन है, 122 माइनस 14, देन 124 माइनस 14, आफ्टर दैट 124 माइनस 53, और लास्ट में 60 कितना था आपका 67, ये सॉरी ये 65 था, ये 61, तो 67 माइनस, सो टोटल आप जब कैलकुलेट करेंगे तो हेड मूवमेंट जो आपकी आएगी वो 640 मूवमेंट आएंगे। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आ रहा होगा। सो देयर आर टू अप्रोचेस, अब आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी अप्रोच बेटर लग रही है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर यही आएगा कि हम जो टोटल मूवमेंट हुई हमारी रीड राइट हेड की वो कितनी रही 640। सो ये आपका एज अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व था, जैसे जैसे हमारी रिक्वेस्ट आ रही है हम उसके अकॉर्डिंग उसको सर्व करते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द
SSTF, and it stands for shortest seek time first. So selects the request with the minimum seek time from the current head position. Okay. Then it is a form of SJF. SJF means shortest job first. Scheduling algorithm may cause starvation of some request. ठीक है, देखेंगे क्या starvation आ रहा है. So we have a this same request queue. ठीक है, हम उसी डायग्राम उसी क्यू को लेके चल रहे हैं, सेम जो हमने FCFS में डिस्कस किया वही क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस उसी रिक्वेस्ट क्यू को, बट हमारा यहाँ अप्रोच क्या रहेगा, यूजिंग थ्रू द SSTF. अब SSTF क्या कहता है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. करंट हमारी हेड स्टार्ट पोजीशन इज दी 53. सो 53 इज द करंट हेड पोजीशन. अब 53 के करंट हेड पोजीशन है, इसके नियरेस्ट को सबसे देखेंगे, शॉर्टर जो इसके नियरेस्ट होगा, करंट हेड पोजीशन हमारे जो भी है हम उसके नियरेस्ट देखेंगे. ठीक है, जैसे अब रिक्वेस्ट क्यू को आप देखिए, here 98 183 37 122 14 124 67 and 67. So which tracks is nearest to the current head position, and the current head position is the 53. Okay, so 53 के nearest देखिए रिक्वेस्ट क्यू में कौन सी ट्रैक है, कौन सा शॉर्टर है, तो आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं 65. सो 53 से हम 65 पर मूव कर जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट इसके शॉर्टर नियरेस्ट, क्योंकि शॉर्टर बोला ना SSTF शॉर्टर सीक टाइम. तो करंट हेड पोजीशन रीड राइट हेड के जो शॉर्टर नियरेस्ट है हम वहां पर उसको फर्दर रीड राइट हेड वहां पर मूव हो जाएगा. तो 65 के नियरेस्ट रिक्वेस्ट क्यू में कौन सा है, 67. यहां पर देखिए 65 ये आ गया और 67 ये आ गया. 67 के नियरेस्ट आप देखिए रिक्वेस्ट क्यू में कौन आएगा, देखिए कंपेयर कर लिया, 65 को हमने कवर अप कर लिया, इसको भी कवर अप कर लिया. अब बचे हमारे पास ये, तो हम किसको कवर अप करेंगे, 67 के नियरेस्ट कहीं ना कहीं आपका 37 आएगा, और 37 के नियरेस्ट वी हैव अ दिस पर्टिकुलर track, that is 14. So we have to cover up the 14 as well as the 37, and the remaining request queue tracks are the 98, 183, 122 and the 124. So current read write head position as per this diagram is the 14. So 14 से अब nearest कौन रहेगा आपका 98. So हमने 98 को भी कवर अप कर लिया. 98 के नियरेस्ट 122 को भी कवर अप किया. 120 को नियरेस्ट 124, और 124 को कवर अप करने के बाद जो लास्ट बच रहा है हमारा दैट इज 183. सो वी हैव टू कवर अप these different tracks using through the SSTF, that is shorter seek time first. Now we have to calculate total number of head movements. तो total number of head movements कितनी रहे, अप्रोच वही रहेगी, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा. 65 minus 53 like 65 minus 53 plus 67 minus 65, एक ये अप्रोच बताई थी, या आप डायरेक्ट एक ही डायरेक्शन में, यहां से देखिए एक ही डायरेक्शन में, तो आप डायरेक्ट ये कर सकते हो 67 minus 53. फिर एक डायरेक्शन ये आ रही है तो आप यहां से मैनेज करते हो 67 माइनस 14, ये इसके केस में हो गया. ठीक है, देन फर्दर 98, तो 90 अब एक ही डायरेक्शन में, यहां तक देखिए ये डायरेक्शन एक ही जा रही है यहां तक, तो आप यहां से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, या आप ब्रेक करके कर सकते हैं कि आप 98 माइनस 14, देन फर्दर 122 माइनस 98, बट यहां पर क्या है, हम डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं 122 माइनस 14. ठीक है, तो इस हिसाब से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आपका हेड मूवमेंट रहेगा वो दैट इज 236 सिलेंडर्स मूवमेंट ऑफ SSTF. So next is the scan.
and it is the important as per the AKTU exam. So in a scan, the disc arm starts at one end of the disc and the moves towards the other end, servicing request until it gets to the other end of the disc where the head movement is reversed and servicing continues. Sometimes it called as the elevator algorithm. Okay. So here is the request queue, same request queue. We have discussed previously same request queue through the FCFS, through the SSTF and now the scan. So scan में क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा डायरेक्शन, जो भी करंट रीड हेड पोजीशन है वहां से जो मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट या तो लार्जर वैल्यू की तरफ होगा या आपका मूवमेंट होगा स्मॉलर वैल्यू की तरफ. सो एज पर द क्वेश्चन वी हैव अ गिवन 200 tracks 0 to 199. Okay, we have a given tracks 0 to 199. It depends upon the question. Either the movement starts from the current head, either the lower value or the larger value. ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको मूवमेंट जो करनी है करंट हेड से, या तो आप जीरो की तरफ मूव करोगे या आप लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करोगे. ठीक है, तो यहां पर जीरो की तरफ हम डायरेक्ट मूव कर रहे हैं. ठीक है, अब अगर हमें जो मूवमेंट करनी है एक डायरेक्शन में, आइदर लार्जर और स्मॉलर, अगर आप लार्जर की तरफ जाएंगे तो लार्जर में जो आपकी लास्ट ट्रैक्स रहेगा, अगर वो गिवन क्वेश्चन में है भी या नहीं, जैसे इसके केस में मान लें ये 199 है. ठीक है, बट 199 रिक्वेस्ट क्यू में नहीं है, बट हमें डायरेक्शन में जाना ही है. बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा स्मॉलर जो ट्रैक है उधर मूवमेंट करना है और उधर मूवमेंट में जो भी हमारी रिक्वेस्ट क्यू उसको कवर अप करना है. बट जीरो हमारा रिक्वेस्ट क्यू में नहीं है, बट यहां स्कैन ही कहता है कि आपको मूवमेंट कहां तक करनी है, लास्ट. देखिए, द डिस्क आर्म स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टुवर्ड्स द अदर एंड, servicing request until it gets to the other end of the disk. ठीक है, तो इस केस में देखिए 53 से हम स्टार्ट हुए, अब 53 के हम जीरो की तरफ मूव कर रहे हैं. ठीक है, जीरो की तरफ हम जब मूव कर रहे हैं तो जो भी उस डायरेक्शन में आपके ट्रैक्स आते रहेंगे हम उनको कवर अप करेंगे. ठीक है, जैसे 53 से स्टार्ट हुए तो 53 के जीरो की तरफ कौन कौन से ट्रैक्स आ रहे हैं, देखिए 37 आ रहा है, 37 को हमने कवर अप कर लिया. देन हमारा 14 आ रहा है, 14 को कवर अप कर लिया. बट हमें एक एंड तक पहुंचना ही पहुंचना है, तो यहां पर हम जीरो तक इसको कवर अप करेंगे. तो यहां से 14 से हम कहां आएंगे, जीरो, क्योंकि लास्ट हमारी स्मॉलर जो वैल्यू है वो कितनी है, जीरो. सेम अगर क्वेश्चन कहता कि हमें लार्जर वैल्यू की तरफ मूव करना होता तो आप 53 से देन फर्दर आप लार्जर की तरफ मूव करते, और लार्जर में 53 से जो भी उसकी रिक्वेस्ट क्यू में आते रहेंगे उसको हम कवर अप करते रहेंगे. जैसे 53 के बाद हम 65 जाएंगे, क्योंकि 65 भी आ रहा था, देन 67, देन 98, तो यहां से हम कहां तक मूव जाएंगे, टिल दी 199 तक. और इसी को बोला जाता है, इस सिचुएशन को बोला जाता है एज अ एलिवेटर. एज अ एलिवेटर. इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन में ये गिवन होगा आपको कि आप लार्जर की तरफ मूव करें या आप स्मॉलर वैल्यू की तरफ. अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम करिएगा कि आपको किधर मूव करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. ओके, सो इन दिस सिनेरियो वी हैव टू मूव द स्मॉलर वैल्यू. सो यहां पर जीरो आ गए. अब जीरो आने के बाद देन फर्दर हम जो भी हमारी रिमेनिंग रिक्वेस्ट क्यू में ट्रैक्स है हम उनको फर्दर कवर अप करेंगे. सो 14 के बाद हमारा कौन सा बच रहा है, 65, देन 67, देन 98, देन 122, देन 124 और ये. ठीक है, सो टोटल हेड मूवमेंट यहां पर जो आपकी रहेगी वो आपका 208 सिलेंडर्स रहेगा. सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो FCFS किया, SSTF किया और स्कैन किया. अगर आप इन तीनों में कंपेयर करें
ठीक है, तीनों में आप कंपेयर करिएगा तो जो टोटल हेड मिनिमम मूवमेंट रही है वो कहीं ना कहीं इस केस में रही होगी। देखिए स्कैन के 208 आ रहा था, इसका 236 आ रहा था एसएसटीएफ के केस में, और एफसीएफएस में सबसे ज्यादा 642 आ रहा। तो मिनिमम मूवमेंट इन तीनों में से अभी तक की जो रही सबसे बेस्ट जो रही कौन सी एल्गोरिथम रही? स्कैन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी सी स्कैन। ठीक है, सर्कुलर, इट प्रोवाइड्स अ मोर यूनिफॉर्म वेट टाइम देन स्कैन। The head moves from one end of the disk to the other, servicing requests as it goes. When it reaches the other end, however, it immediately returns to the beginning of the disk without servicing any request on the return trip. कहने का मतलब सेंस ये है कि स्कैन काम वैसे ही करता है आपका, सी स्कैन जो है काम वैसे ही करता है जैसे हमारे स्कैन में हमने देखा था। देखिए अभी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखिए लार्जर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। देखिए 53, 65 यहां तक, तो यहां तक हम पहुंचे। स्कैन के केस में जब हम कर रहे थे, देखिए स्कैन के केस में क्या कर रहे थे हम लोग, 0 तक आए थे, फिर हम फर्दर जो रिमेनिंग हमारी ट्रैक्स थे हम उसको कवर अप कर रहे थे। बट सी स्कैन में क्या है, हम एक एंड पोजीशन पर पहुंच जाने के बाद देन हम किसी भी रिक्वेस्ट ट्रैक्स को हम कवर अप नहीं करेंगे। एज द स्टेटमेंट सेज दैट व्हेन इट रीचेस द एंड, हाउएवर इट इमीडिएटली रिटर्न्स टू द बिगिनिंग ऑफ द डिस्क विदाउट, देखिए विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ऑन द रिटर्न ट्रिप। तो यहां से हम बैक पोजीशन में जाएंगे, बट हम किसी रिक्वेस्ट को जो आईओ रिक्वेस्ट क्यू में है हम उसको कोई भी कवर अप नहीं करेंगे। यानी रीड राइट हेड पोजीशन बैक जब आएगा तो हम कोई भी किसी भी रिक्वेस्ट क्यू को सर्व नहीं करेंगे। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब यहां पर लास्ट तक आ जाएंगे, देखिए यहां भी लास्ट है सी स्कैन में और यहां पर भी लास्ट तक, टिल दी लास्ट। लास्ट कितना आपका 0 ट्रैक, और 0 ट्रैक्स के बाद हम फर्दर जो भी रिमेनिंग हमारी ट्रैक्स रह जाएंगे हम उसको कवर अप करेंगे। तो जो सी स्कैन है ये आपका वन डायरेक्शन पर काम करता है, बट स्कैन जो आपका था वो बोथ डायरेक्शन में काम कर रहा था, है ना। देखो बोथ डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट स्कैन के किसी स्कैन के केस में क्या है, एक ही डायरेक्शन में हम इसको काम कर रहा है, और फर्दर जब यहां से मूव हुआ तो कोई भी रिक्वेस्ट को हम कवर अप नहीं करेंगे। देन फर्दर रिमेनिंग जो क्यू में रह जाएंगे हम उसको सर्व कर देंगे। ठीक है तो कैलकुलेशन वही रहेगी, सेम जो मूवमेंट होगा कैलकुलेट कर लीजिएगा आप उस हिसाब से। देन लास्ट इज द सी लुक, इट इज द वर्जन ऑफ सी स्कैन। आर्म ओनली गोज एज फार एज द लास्ट रिक्वेस्ट in each direction, then reverses direction immediately without first going on all the way to the end of the disk. ठीक है, सेम सी स्कैन की तरह ही काम कर रहा था। देखिए यहां पर क्या था कि हम लास्ट यहां पर भी सर्व कर रहे थे और बाकी वापस रिटर्न जब कर रहे थे हम कोई भी सर्व नहीं करते, बट रिटर्न 0 ट्रैक्स पर कर रहे थे। बट सी लुक के केस में जो हमारी लास्ट रिक्वेस्ट क्यू में जो भी लास्ट ट्रैक है हम उस वहां तक ही रीड राइट हेड पोजीशन को मूव करेंगे। देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, बट लास्ट सर्विंग रिक्वेस्ट इज दी 183। ओके, सो 183 पर हम यहां पर स्टॉप हो जाएंगे। देन फर्दर यहां से हम रिटर्न करेंगे विदाउट सर्विंग द रिक्वेस्ट। वी हैव टू रिटर्न टिल दी नॉट टिल द 0। कहां तक आएंगे, लास्ट मिनिमम कौन सा है आपका, देखिए मिनिमम सर्विंग यहां पर 14 है और मैक्सिमम नंबर आपका यहां पर जो ट्रैक नंबर है वो 183 है। ये आपका लार्जर है और 14 आपका स्मॉलर मिनिमम। ओके, सो मिनिमम हम कहां पर आ गए 14, अब 0 तक नहीं जाएंगे तो यहां पर 14, और 14 के बाद फर्दर हम जो भी रिमेनिंग रह जाएगा उसको हम कवर अप कर लेंगे। तो यहां पर मिनिमम और लार्जर पे ही काम करता है, हम एज सच इसको कवर अप नहीं करते हैं इधर, ना ही हम इधर कवर करते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ
सी लुक, कैलकुलेशन वही रहेगी, जो भी आपका टोटल हेड मूवमेंट आएगा वही आएगा। सो कंफ्यूज मत होइएगा कि सी स्कैन और सी लुक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी स्कैन और सी लुक एक जैसा है, बट सी स्कैन क्या है, आप यहां से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन एक ही रहेगी, ये भी सी लुक भी आपका वन डायरेक्शन में काम करता है। ओके, सी स्कैन भी वन डायरेक्शन में करता है, बट डिफरेंस क्या है, सी स्कैन टिल द एंड ऑफ द सर्विंग 199 एंड रिटर्न टिल द मिनिमम 0, बट सी लुक के केस में जो भी उसकी लास्ट सर्व दैट इज लार्जर वैल्यू क्या है 183 वहां तक, फिर वहां से जब बैक आएगा तो कोई भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेगा, कहां तक आएगा, मिनिमम कौन सी है 14, और 14 के बाद देन फर्दर वो जो भी रिमेनिंग आपके सर्विंग रह जाएंगे उसको वो कवर अप करेगा। So we have to compare different algorithm and conclude that SSTF is a common and has a natural appeal. Scan and C-scan perform better for system that place a heavy load on the disk. If the load is heavy, then we have to perform scan and the C-scan. Next point says that performance depends on the number and the type of request. Next, request for disk service can be influenced by the file allocation method. The disk scheduling algorithm should be written as a separate module of the operating system. Obviously है कि इसको हम अलग से ही मॉड्यूल में, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल है उसमें अलग से हम इसको रिटर्न करते हैं, एंड इट अलाउइंग इट टू बी रिप्लेस्ड विद द डिफरेंट एल्गोरिथम if it is necessary. Either SSTF or LOOK is a reasonable choice for the default algorithm. So SSTF and LOOK, both algorithm are the choice for the default algorithm. Okay, I hope this disk scheduling algorithm is clear to all of you. Thank you.